Hi everyone, welcome back to my channel Science Plus TV. So today I'm going to continue the topic we started in the previous video, types of organic reactions, right? In the last video we have discussed substitution reactions and today we will discuss the addition reactions. But इस टॉपिक को शुरू करने से पहले let me remind you, if you are new to my channel, then please do subscribe it and don't forget to press the bell icon to stay connected. Okay, so now let's start the topic. So friends, in the previous video we have started discussing that there are 8 common types of organic reactions, and I discussed the substitution reactions in detail with you guys. Today I will be discussing the addition reactions. So let us start the topic. We will be starting with the very first introduction to addition reactions. As the name is self-explanatory, आप देख सकते हैं addition इसका मतलब क्या है? Addition का मतलब होता है simply add हो जाना, combine हो जाना, right? So the reactions which involve combination of two reacting molecules to give a single molecule of the product is defined as the addition reactions. Okay? कि ऐसे reactions जिनमें दो या दो से ज़्यादा reacting molecules जो हैं वो आपस में combine हो जाते हैं and they give a single molecule. These reactions are typically seen in the compounds containing multiple bonds. Multiple bonds क्या होते हैं? Double bonds and triple bonds. Okay. Now depending upon the nature of attacking reagent, कि कौन से attacking reagent की वजह से reaction हो रही है addition वाली, the addition reactions are of further 3 types. जैसे हमने substitution में पढ़ा था, वैसे ही हम addition reaction के types को भी पढ़ेंगे, right? So let us start with the very first one. So the first one is nucleophilic addition reactions. Nucleophiles क्या होते हैं? Nucleophiles are the nucleus loving species. ऐसे species जिनके पास electrons की excess होती है या फिर जिनके पास एक partial negative charge होता है. ठीक है? So these are nucleophiles. So when addition reactions are happening with the help of nucleophiles, the reactions which are brought about by nucleophiles are called as the nucleophilic addition reactions, right? These reactions are typical of aldehydes and ketones. ये वाली reactions generally aldehydes और ketones के अंदर जब addition होता है उसमें देखी जाती हैं, right? So we will be taking an example of base catalyzed addition of HCN to aldehyde and ketone. Okay, तो aldehyde और ketone का हम एक general formula ले लेंगे RCOR. Okay, इसमें जो दोनों alkyl groups हैं, अगर ये दोनों ही alkyl groups हों तो ये ketone बन जाएगा, इन दोनों में से एक हाइड्रोजन हो और एक एल्काइल ग्रुप हो तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा. सो व्हाट हैपेंस कि बेस कैटालाइज करता है, मतलब बेस में से जो है ये हमें नेगेटिवली चार्ज्ड OH ग्रुप मिलेगा, ये स्पीशीज हमें मिलेगा. इट विल बी अटैकिंग द HCN मॉलिक्यूल एंड रिलीज द न्यूक्लियोफाइल आउट ऑफ इट. साइनाइड न्यूक्लियोफाइल यहाँ से हमें मिल जाएगा. दिस साइनाइड न्यूक्लियोफाइल विल बी अटैकिंग द aldehyde or ketone molecule and the reaction will happen in this way. You can see the arrows, okay, that the electrons, this negative charge is shifting to carbon and double bonded multiple bond वाले electrons they are shifting to the oxygen. Okay, तो एक unstable हमारे पास molecule बनेगा कुछ इस तरह से which is having a negative charge on it. तो यहाँ पे क्या होगा? It will be further attacking the HCN molecule, जहां से फिर से एक साइनाइड न्यूक्लियोफाइल रिलीज हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है ये इसमें जाके ऐड हो जाएगा और हमें एडिशन प्रोडक्ट यानी कि सायनोहाइड्रिन मिल जाएगा. ओके, इसको हम कीटोन सायनोहाइड्रिन बोल रहे हैं बिकॉज दोनों पोजीशंस पे यहाँ पे एल्काइल ग्रुप्स हैं. सायनोहाइड्रिन्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें सेम कार्बन एटम पे OH और CN दोनों ग्रुप्स होते हैं. ओके, सो दिस इज आवर एडिशन प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड बाय द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल. ओके, so this was about nucleophilic addition reactions. Moving on to the electrophilic addition reactions. The electrophilic addition reactions again definition से आपको पता चल जाएगा कि ये वो reactions हैं which are brought about by electrophiles. Let me revise कि electrophiles क्या होते हैं? Electrons loving species. ठीक है, जिनके पास electrons की कमी होती है, जिनके पास एक positive charge होता है, those are called as the electrophiles. Now these reactions are typical of alkenes and alkynes. ठीक है,
जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्कीन और एल्काइन होते हैं, इनके ये टिपिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, सो वी विल बी टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू प्रोपाइलिन इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। क्या जरूरत थी हमें लिखने की एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड? सो इट विल बी एक्सप्लेन्ड टू यू लेटर व्हेन आई विल डिस्कस द फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये एडिशन स्पेशली देखेंगे एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में क्या बनेगा। ठीक है, सो लेट्स सी, वी हैव अ प्रोपाइलिन मॉलिक्यूल which will be attacked by this proton, okay, H positive, right? These these pi electrons will be attacked by this proton, and this is a slow step for the formation of a carbocation. We will get a secondary carbocation क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा। ओके, so this secondary carbocation will be then in the second step it will be attacked by the bromide, जो कि एक फास्ट स्टेप होगा, और जल्दी से ब्रोमाइड जाके इस सेकंड कार्बन पर अटैच हो जाएगा। सो वी विल गेट आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, या फिर हम इसे 2 ब्रोमोप्रोपेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन जनरेट हुआ था, जिसकी वजह से हमारे पास ये 2 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन हुआ है। दिस हैपेंड इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड्स। जब इसी तरह का एडिशन पेरोक्साइड्स की एब्सेंस में होता है तो मैकेनिज्म रहता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बट what if the same addition is happening in the presence of peroxide? अगर presence of peroxide में होगा same reaction, तो यही reaction free radical mechanism से होगा, जो कि मैं आपको अभी समझाने वाली हूं। So let us discuss the free radical mechanism also. So here in the free radical addition reactions, पहले हम definition देख लेते हैं जल्दी से quickly, कि addition reactions which are brought about by free radicals are called as free radical addition reactions। ये तो आपको अब तक समझ ही आ गया होगा कि जो definition है वो कैसे लिखनी है। ठीक है, we will take the example of again hydrogen bromide to alkenes in the presence of peroxide. Now we will take the same molecule propene or propylene, whatever you say. इसमें हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो हमें पिछले कंपाउंड में मिला था 2 ब्रोमोप्रोपेन, यहाँ पे हमें मिलेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। वहां पे आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड मिला था, यहाँ पे हमें मिलेगा नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। लेट्स सी द मैकेनिज्म से ही हमें ये समझ में आएगा कि व्हाट विल हैपन। द 3 स्टेप मैकेनिज्म विल बी फॉलोड। द फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा, जो पेरोक्साइड यहाँ पे हमने लिया है, हम प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में कर रहे हैं ना, तो जो पेरोक्साइड है it will be undergoing homolytic fission of this bond in the presence of heat or sunlight। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन होने की वजह से एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों ग्रुप्स के पास चला जाएगा एंड वी विल गेट 2 एल्कोक्सी फ्री रेडिकल्स। ये जो एल्कोक्सी फ्री रेडिकल्स हैं दे विल बी अटैकिंग द HBr मॉलिक्यूल, रिलीजिंग एल्कोहल एंड ब्रोमाइन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है, नाउ इट विल बी अटैकिंग द प्रोपेन मॉलिक्यूल एंड लीडिंग टू द प्रोपेगेशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो इसमें प्रोपेगेशन में भी 2 स्टेप रहेंगे। पहला स्टेप स्लो रहेगा जिसमें फ्री रेडिकल विल बी एडिंग टू दिस कार्बन, ओके, एंड इन टर्न वी विल बी गेटिंग अ सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, और ब्रोमीन जाके इस पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। ओके, वी विल गेट आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। सेकेंड स्टेप में ये जो आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल है इट विल बी अटैकिंग 1 मोर HBr मॉलिक्यूल। ये फास्ट स्टेप होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जाके इस सेकेंड पोजीशन पर अटैच हो जाएगा एंड वी विल गेट नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, और यहाँ से एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल फिर से रिलीज हो जाएगा विच विल बी प्रोपेगेटिंग द रिएक्शन। ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल फिर से जाके किसी प्रोपेन मॉलिक्यूल को जो है आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करेगा एंड दिस रिएक्शन विल कंटिन्यू। एट द एंड जब टर्मिनेशन होना है तो these bromine free radicals will be joining together to give bromine and this reaction will be terminated। so यहाँ पे ये बड़ा अच्छा conceptual question भी बनता है। ठीक है, कि जो HBr का एडिशन है एल्कीन्स के अंदर, ये जब प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में हो और एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में हो तो क्या डिफरेंस रहता है। सो यहाँ मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जब एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म फॉलो होगा जिसमें यू विल गेट दी आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड
लेकिन जब ये प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में होगा तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म होगा एंड वी विल बी गेटिंग द नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड. तो हियर दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. Okay, so this was all about the addition reactions and its types. In the end, I just hope that this topic is clear to you all. आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगले वीडियो में हम एलिमिनेशन रिएक्शंस को समझेंगे अच्छे से. एंड देर इज वन मोर बोनस फॉर यू गाइज कि ये जो नोट्स हैं, ये जो स्लाइड्स हैं, ये मैंने खुद बनाए हैं. सो यू कैन यूज देम फॉर एग्जाम पर्पजेज ऑल्सो. ओके, जब आपको कॉम्पैक्ट नोट्स कहीं से पढ़ने होते हैं तो आप इनको यूज कर सकते हैं. एंड अगेन फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि आपको कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है. आई विल कीप पोस्टिंग वीडियोस लाइक दिस. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. बाय बाय.